بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انگلش کے آسان ترین اسباق کے ساتھ آپ کی خدمت میں محمد نازمین اطہر حاضر ہے۔ آج ہمارے انگلش کے اسباق کا آغاز ہوتا ہے اور دو تین باتوں کا آپ نے خیال رکھنا ہے، یاد رکھنی ہے آپ نے یہ دو تین باتیں۔ ایک یہ کہ انگلش کے حروف کو انگلش میں لیٹرز کہا جاتا ہے۔ انگلش کے ایک حرف کو لیٹر اور ایک سے زائد جو حرف ہوتے ہیں اردو میں ان کو حروف کہا جاتا ہے، اور حروف کو انگلش میں لیٹرز کہتے ہیں۔ ایک لیٹر یعنی ایک حرف اور ایک سے زائد اگر لیٹرز ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے حروف۔ اور دوسری بات جو آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کہ انگلش میں کل 26 لیٹرز ہوتے ہیں، یعنی 26 حروف انگلش میں ہیں۔ 26 کو انگلش میں 26 کہا جاتا ہے۔ تو 26 حروف انگلش میں ہیں جو ہم سیکھنے جا رہے ہیں۔ تیسری چیز جو آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے وہ یہ کہ انگلش کے حروف دو طرح لکھے جاتے ہیں۔ ایک بڑا حرف ہوتا ہے، بڑا لیٹر، اور ایک چھوٹا حرف یعنی چھوٹا لیٹر۔ اب بڑا لیٹر یہ تو ہم اردو میں کہیں گے، چھوٹا لیٹر یہ ہم اردو میں کہیں گے۔ انگلش میں کہتے ہیں بڑے لیٹر کو کیپٹل لیٹر۔ کیپٹل لیٹر یہ بڑے حرف کے لیے ہم بولیں گے، اور بار بار جب بولیں گے تو آپ کو ازبر ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اور جو چھوٹا حرف ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں اسمال لیٹر۔ اسمال لیٹر یعنی چھوٹا حرف۔ تو آج ہم پہلا حرف سیکھ رہے ہیں وہ ہے اے۔ اے دو طرح لکھا جاتا ہے۔ جو ہمارے لیفٹ ہینڈ سائڈ یعنی بائیں جانب لکھا ہوا ہے اے، یہ بڑا اے ہے یعنی کیپٹل اے، اور جو ہمارے دائیں طرف لکھا گیا ہے یہ ہے چھوٹا اے یعنی اسمال اے۔ کیپٹل اے، اسمال اے۔ اے الف کی آواز دے گا، کسی جگہ پر حمزہ کی آواز دے گا، کسی جگہ پر عین کی آواز دے گا، اور بعض اوقات زبر کے لیے بھی ہم اے کا ورڈ استعمال کریں گے تاکہ وہاں زبر جیسی آواز پیدا کی جا سکے۔ اور بعض اوقات ڈبل اے لکھا جائے گا، یعنی دو بار اے لکھا جائے گا، اور اس کی شکلیں یوں ہو سکتی ہیں کہ دونوں بار اے کیپٹل اے لکھا گیا ہو دونوں بار۔ بعض اوقات ایسا ہو سکتا ہے کہ دونوں بار اسمال اے لکھا ہوا ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک اے کیپٹل ہو اور ایک اسمال ہو۔ ان تینوں حالتوں میں اس کی آواز بن جائے گی آ، یعنی الف مد آ۔ الف مد آ جیسے ہم لکھتے ہیں اور اس کی جو آواز آتی ہے الف مد آ، ایسے ہی اگر انگلش میں دو بار اے لکھیں گے اس کو کہتے ہیں ڈبل اے۔ تو ڈبل اے آ کی آواز دے گا، چاہے وہ دونوں کیپٹل میں لکھے گئے ہوں اے، اور یا دونوں اسمال میں لکھے گئے ہوں، یا پہلا اے کیپٹل ہو اور دوسرا اسمال ہو۔ ان تینوں صورتوں میں اس کی آواز آئے گی، یعنی ڈبل اے کی آواز آئے گی آ۔ تو آج کے سبق میں ہم نے جو چیزیں سیکھیں، 26 حروف ہم سیکھنے جا رہے ہیں۔ آج اس سلسلے کا پہلا حرف ہم نے سیکھا اے، اور حروف کو انگلش میں لیٹرز کہا جاتا ہے۔ تو آج ہم نے پہلا لیٹر سیکھا وہ اے ہے۔ دوسری بات یہ کہ انگلش کی جتنے بھی لیٹرز ہیں وہ دو طرح لکھے جائیں گے، کیپٹل لیٹر اور اسمال لیٹر۔ کیپٹل لیٹر کو بڑا حرف کہتے ہیں اور اسمال لیٹر کو چھوٹا حرف کہتے ہیں۔ اور یہ انگلش کے 26 حروف کیپٹل اے اور اسمال اے یہ ہم نے سیکھا، اور اے کی جو آواز ہے وہ ہم نے سیکھی۔ الف، حمزہ، عین اور زبر کی آواز اے سے ظاہر ہوتی ہے، جبکہ ڈبل اے سے آ جیسی آواز آئے گی۔ ہمارا یہاں سبق مکمل ہوا۔ نئے سبق کے ساتھ یعنی اگلے سبق کے ساتھ انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اس وقت تک کے لیے محمد نازمین اطہر کو اجازت دیجیے۔ آپ سے گزارش ہے کہ آج کا یہ سبق اپنی ڈائری یا کاپی پر نوٹ فرما لیں۔
इंग्लिश के इब्तदाई असबाक के साथ आपकी खिदमत में मोहम्मद नाज़मीन अत्हर हाजिर है। आज हम इस सिलसिले का दूसरा सबक पढ़ रहे हैं। जैसा कि पहले सबक में हमने बताया था कि इंग्लिश में 26 लेटर्स हैं, यानी 26 हरूफ हैं, और हमने पहले सबक में लेटर ए के बारे में पढ़ा था। हमने आपको बताया था कि इंग्लिश के जितने हरूफ हैं वो दो तरह लिखे जाते हैं, कैपिटल लेटर्स यानी बड़े हरूफ और स्मॉल लेटर्स यानी छोटे हरूफ। आज का हमारा लेटर है यानी हर्फ है, उसको कहते हैं बी। और ये आप देख रहे हैं जो रेड कलर में लाल रंग में बी लिखा हुआ है, ये कैपिटल बी यानी बड़ा बी है। और आपकी स्क्रीन में जो ब्लू कलर में बी लिखा हुआ है, ये स्मॉल बी यानी छोटा बी है। और बी, इंग्लिश का बी उर्दू के हरफ बे जैसी आवाज़ पैदा करेगा। बी इंग्लिश का दूसरा हरफ है, ए के बाद आता है, और बी उर्दू में बे जैसी आवाज़ पैदा करेगा। हर लेटर को दो तरह लिखा जाता है, एक बड़ा हरफ और एक छोटा हरफ। बड़े हरफ को हम कैपिटल लेटर कहेंगे और छोटे हरफ को हम स्मॉल लेटर कहा करते हैं। बी जो रेड कलर में मौजूद है ये कैपिटल लेटर है, और बी जो कि ब्लू कलर में लिखा हुआ है ये स्मॉल लेटर है। और बी उर्दू के हरफ बे जैसी आवाज़ पैदा करता है। उम्मीद है कि हमारा आज का ये दूसरा सबक आप समझ चुके होंगे। नए सबक के साथ इंशाअल्लाह दोबारा हाजिर होंगे। उस वक्त तक के लिए मोहम्मद नाज़मीन अत्हर आपसे इजाज़त चाहता है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहम्मद नाज़मीन अत्हर इब्तदाई इंग्लिश असबाक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। आज हमारे इब्तदाई इंग्लिश कोर्स के सिलसिले का तीसरा सबक पेश किया जा रहा है, और इसी के साथ साथ इंग्लिश के जो 26 लेटर्स हैं यानी 26 हरूफ हैं, उनमें से तीसरा हर्फ आज हम पढ़ रहे हैं, और ये हर्फ है सी। सी जो रेड कलर में आपको सी नज़र आ रहा है ये कैपिटल सी यानी बड़ा सी, और जो ब्लू में सी नज़र आ रहा है ये है स्मॉल सी यानी छोटा सी। इससे आप एक चीज़ ये देख रहे होंगे कि शक्ल कैपिटल सी की और स्मॉल सी की बिल्कुल एक जैसी है। जबकि हमने देखा था कि स्मॉल ए और कैपिटल ए दोनों की शक्लें मुख्तलिफ थी, ऐसे ही स्मॉल बी यानी छोटा बी और कैपिटल बी यानी बड़ा बी, उन दोनों की शक्लें भी एक दूसरे से मुख्तलिफ थी। लेकिन सी की शक्लें एक जैसी हैं, लेकिन साइज़ में फ़र्क है। कैपिटल सी यानी बड़ा सी बड़ा लिखा जाता है और छोटा सी छोटा लिखा जाएगा। उर्दू में सी काफ और काफ की आवाज़ पैदा करेगा। काफ और काफ कुछ जगहों पर सी सीन से या स्वाद जैसी आवाज़ भी देगा, लेकिन वो बहुत कम जगहें होंगी। इसका एक आसान सा फार्मूला ये है कि इंग्लिश के 26 हरूफ हैं, तो 23 हरूफ ऐसे हैं जिनके साथ जब सी लिखा हमें मिलता है, जिन 23 हरूफ से पहले सी लिखा हुआ होगा वहाँ हम इसको काफ की आवाज़ में पढ़ेंगे। जबकि 3 ऐसे हरूफ हैं जिनसे पहले अगर सी लिखा हुआ हो तो ऐसी सूरत में हम उसको सीन से या स्वाद की शक्ल में पढ़ेंगे। तो सी काफ और काफ की आवाज़ देगा 23 जगहों पर। इंग्लिश में अगर हम 26 लाइनें पढ़ रहे हैं तो 26 बार अगर सी आया है किसी पेज पर, तो 23 बार तकरीबन हम इसको काफ की आवाज़ से पढ़ रहे होंगे, और 3 बार किसी जगह ये सीन से या स्वाद की आवाज़ भी
पैदा करेगा। और जब हमारे असबाक आप आइंदा पढ़ेंगे क्लास 1 और 2 के, जब हमारे असबाक शुरू होंगे, लेवल हमारे बढ़ेंगे, तो उस वक्त हम आपको मज़ीद बता देंगे, समझा देंगे कि सी कब कब काफ और काफ की आवाज़ देगा और कब कब सीन से और स्वाद की आवाज़ दिया करता है। सी की आवाज़ें काफ और काफ भी होती हैं और सीन से और स्वाद भी होती हैं। इन आवाज़ों को आपने याद रखना है कि सी बोलते हुए, हालांकि ये सीन जैसी आवाज़ से ज़ाहिर होता है, लेकिन ज़्यादातर ये काफ या काफ की आवाज़ पैदा किया करता है। बिल्ली एक जानवर है, इसको इंग्लिश में कैट कहते हैं, कैट, CAT, कैट, कैट बिल्ली को कहते हैं, लेकिन कैट सी से लिखा जाता है, CAT, और हम उसको बोलते हैं कैट, सी से कैट, सी से कैट। गोया सी की जो आवाज़ है वो खा खा खा, इस किस्म की आवाज़ सी से ज़ाहिर हुआ करती है। सी काफ की आवाज़ पैदा करेगा, और कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ सीन से और स्वाद जैसी आवाज़ पैदा करेगा। उम्मीद है कि आज का सबक आपकी समझ में आ गया होगा। इस सबक के हवाले से अगर कोई सवाल आप पूछना चाहते हो, ज़रूर पूछिए। हमारा नंबर स्क्रीन पर भी आप देख रहे हैं, 0333279767। मोहम्मद नाज़मीन अतहर आपके लिए आसान तरीन असबाक लेकर आया करता है। नए सबक तक के लिए मोहम्मद नाज़मीन अतहर को अब इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।